વિશે શું કહેશો? આજનો કાર્યક્રમ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા અને વડોદરા HR ફોરમના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે શ્રી આપણે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ 3 એમને જ્યારે એમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી એક શાસનકર્તા તરીકે, એક રાજા તરીકે, ત્યારે તેમના તે સમયના દિવાન ટી માધવરાવે એમને જે પણ પ્રવચનો આપ્યા હતા તેનું એક પુસ્તકના રૂપે આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ પુસ્તકને આજના સંદર્ભમાં મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેશનલ્સ માટે શું સંદેશાઓ છે તેના વિશે ડૉક્ટર જીગર ઇનામદાર, જે યુનિવર્સિટીના સેનેટ અને સિન્ડિકેટ મેમ્બર છે, તેઓ તેમણે આ વિષય પર PhD કર્યું છે, તેઓ આના વિશે વાત કરવાના છે. શાસન એ આજના સમયની અંદર ખૂબ ઉપયોગી બાબત છે, ચાહે પ્રાઇવેટ હોય કે સરકાર હોય, કે કેવી રીતના ચલાવવું એ બહુ મહત્ત્વની બાબત મનાય છે. ત્યારે આજનો કાર્યક્રમ છે, વિદ્યાર્થીઓ પણ આવેલા છે, પ્રોફેશનલ આવેલા છે, ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે કહી શકાય? ચોક્કસપણે કહી શકાય. ઇનફેક્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, તે જ્યારે ગુજરાત રાજ્યના આપણા ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે તેમણે આ પુસ્તક IAS અધિકારીઓ જેમની ટ્રેનિંગ મસૂરીમાં એકેડેમીમાં થાય છે, જેઓ ગુજરાત રાજ્યમાં અલોટ થયા છે, તે સૌને આ પુસ્તક ભેટ આપતા હતા અને આગ્રહ રાખતા હતા કે દરેક IAS અધિકારીએ આ પુસ્તક વાંચવું જોઈએ, જેથી તેઓ જ્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં આવે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ કરવા માટે ત્યારે તે આ પુસ્તકને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્નન્સ કરે. એટલે આ પુસ્તકની મહત્તા ખૂબ જ છે, જે ભૂતકાળમાં પણ હતી, અત્યારના પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચોક્કસપણે રહેશે. હું પ્રોફેસર ભાવના મહેતા, ડીન અને હેડ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા. Timeless pearls of management wisdom. Now, I would request you to have a good big round of applause. As she said that books spread fragrance, actually it's fragrance of knowledge which never diminishes. और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, because I thought that we are discussing the book called Shasan Sutra, which is the Hindi translation done by Dr. Jigar Inamdar of a book called Minor Hits, which was published or it was compiled in 1881, 1881 में, यानी तकरीबन 100 साल 150 साल होने वाले हैं उस बुक को बने हुए। और इससे मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की और खुशी की बात नहीं हो सकती है कि इस बुक का जो आज सेशन हम कर रहे हैं वो जिस जगह पे कर रहे हैं वो उस जगह पे कभी मैं भी पढ़ा था, क्योंकि ये बुक जो है वो सर सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जब 12 साल की उम्र में राजा बने थे, तो उनको शिक्षा देने के लिए जो उन्हें सिखाया गया उसका कंपाइलेशन है। और मेरे सभी जो HR के कलीग्स हैं जो यहाँ से निकले हैं, वो भी मानेंगे कि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं इस फैकल्टी का, इस संस्था का योगदान बहुत बड़ा है। आज हम जो भी हैं उसकी वजह से हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर आकर इस फैकल्टी में इस सेशन में शामिल हो सकूँ। माइनर हिट्स जो बुक है या शासन सूत्र को जब अर्जुन भाई ने सजेशन दिया कि हम कोई इस पे एक सेशन रखना चाहिए, क्योंकि बड़ोदा HR फोरम का ऑब्जेक्टिव है that we should share professional knowledge among all HR fraternity so that the quality of upcoming young HR professional improves. Expert panel टीम में से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उनमें से एक बच्चे को बड़ोदरा का भावी राजा निर्धारित करने वाले। तो सिलसिला 9
मई को 9 मई 1875 को 3 लोग कवड़ारा से 3 बच्चे कवड़ारा से वडोदरा आए। मकरपुरा के पास एक रेसिडेंसी बंगलो था, जो रेसिडेंसी बंगलो भी तोड़ दिया गया है। वो रेसिडेंसी बंगलो में 3 बच्चों को रखा है। उनका ध्यान करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए वहां पर 12 लोग मौजूद थे, जो उनका बोलना, उनका चलना, एक दूसरे के साथ व्यवहार, नौकर के साथ व्यवहार, अतिथि के साथ व्यवहार, अधिकारी के साथ व्यवहार, ये सारी चीजें देखते हैं। उनके ग्रहयोग देखे गए, उनकी कुंडली बनाई गई, उनकी हस्तरेखाएं देखी गई। ये सब देखने के बाद अंतिम जो आपका फाइनल राउंड होता है प्लेसमेंट वाला, वो प्लेसमेंट में गोपाल राव उपस्थित हुए। गोपाल राव जो कुछ दिनों बाद सयाजी राव बनने वाले थे। तीनों भाई को पूछा गया, 2 सगे भाई थे, एक उनके चाचा के बेटे थे। ये तीनों को एक ही सवाल महारानी गंगाबाई के द्वारा अंत में पूछा गया, और वो सवाल ये था कि आप यहाँ पर क्यों आए। जो सबसे बड़े वाले थे बाबा साहेब ने बोला कि हमारे बहुत सारे संबंधी, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं, मैं उनको मिलने के लिए आया। जो छोटे वाले भाई थे उन्होंने बोला कि बड़ौदा के बारे में बहुत सुना है, बड़ौदा तो छोटा सा गांव है, बड़ौदा बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, किला है, किले की दीवारें हैं, यहाँ पे हाथी है, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। यही सवाल अंत में जब बाल गोपाल राव को पूछा गया, गोपाल राव का जवाब था, मैं यहाँ पर राजा बनने आया। उनके जवाब के आधार से उनका चयन हुआ। 25 मई 1875 को उनका दत्तक विधान हुआ। उस दत्तक विधान के बाद 28 मई 1875 को उनका राज्याभिषेक हुआ, और उस राज्याभिषेक के बाद वो बड़ौदा के भावी राजा के रूप में प्रस्थापित हुए। जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, जिनके नाम पे बड़ौदा गौरवपूर्ण तरीके से जाना जाता है सयाजी नगरी के रूप में, ऐसे सयाजीराव त्रुटी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ त्रुटी है। 1863 में 1863 में महाराष्ट्र के नासिक के नजदीक में कवड़ारा का गांव, वहां पर उनका जन्म हुआ। उस समय बड़ौदा में महाराजा खंडेराव शासन कर रहे हैं। 1870 में 1870 में महाराजा खंडेराव का निधन हुआ। महाराजा खंडेराव के छोटे भाई मल्हार राव, जो पादरा के पास एक जेल में महाराजा खंडेराव को मारने की साजिश में बंद थे, उनको राजा बनाया गया, क्योंकि महाराजा खंडेराव निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। मल्हार राव जैसे बाकी के राजा थे वैसे ही राजा थे, और राजा होने के जो दुर्गुण होते हैं वो सभी दुर्गुण मजबूत रूप से उनमें व्याप्त थे। इन सभी दुर्गुणों के चलते हुए अंग्रेजों का शासन था। 1857 की हमारी क्रांति निकल हो चुकी थी, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने मल्हार राव को 1875 में पदभ्रष्ट किया, और उन्होंने महारानी गंगाबाई को अनुमति दी कि वो अपने परिवार से किसी बच्चे को दत्तक ले सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, और उन्हें राजा घोषित कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी लंबी खोज शुरू हुई। उस लंबी खोज के अंत में 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। आपके कैंपस के टाइम पे जो शॉर्टलिस्टिंग होता है, वैसा कैंपस उस समय चल रहा था। महारानी गंगाबाई उस कैंपस को हैंडल कर रहे थे। उनके 2 सलाहकार थे, एक थे मिस्टर पीलियट और दूसरे वो थे सर तांजावुर के माध्यम। मर्यादित करना चाहिए। आज इस चीज को हम किस प्रकार से रिलेट कर पाएंगे? स्क्रीनशॉट वाली व्यवस्था है। हम पर्सनल कुछ भी किसी को लेके भेजते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि 24 आवर्स में किसी पे हो जाएगा, या हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे। और डिलीट फॉर एवरीवन से पहले स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन सामने वाले के पास अवेलेबल होता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, मर्यादित रखें निजी पत्र व्यवहार को, क्योंकि निजी पत्र व्यवहार कब सार्वजनिक हो जाए तो हमारे हाथ में नहीं होता। इसी प्रकार से जो भी हम ईमेल से आजकल कम्युनिकेट करते हैं, कि ईमेल के फोल्डर्स बनाते हैं, और ईमेल के फोल्डर्स बनाने के बाद उस फोल्डर्स को मेंटेन करते हैं। इसी प्रकार से उस समय कागज पे लिखा जाता था, तो ऐसा कहा गया कि आप ऐसे राजा अगर कोई
पत्र व्यवहार करते हैं, कागज कुछ कोटि का होना चाहिए, कागज की क्वालिटी वो राजा को शोभा दे उस प्रकार की होनी चाहिए, पैर उस प्रकार की होनी चाहिए, हस्ताक्षर उस प्रकार के होने चाहिए, कागज के ऊपर हमारी मोहर होनी चाहिए। इसी प्रकार से लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स राजा को हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। आप आपके फील्ड में आपकी कैबिन में बैठे हैं और कोई भी व्यक्ति आके आपको मिल ले, आप काम तो करेंगे। आने वाला व्यक्ति उसको अपनी बात संक्षिप्त में रखनी होती है, तो संक्षिप्त में 5 मिनट में रखने वाली बात कम से कम 35-40 मिनट चलती है। आप काम तो करोगे, डिसीजन तो लोगे, लोगों को मिलकर रहोगे, लोगों को सुनते रहोगे। आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर के लोगों के साथ आपकी सीधी बात हो, बाकी की चीजें आपकी टीम में डाल दो। ऐसे में भी व्यापारियों से कभी नहीं मिलना चाहिए। किसी को आपके वहां टेंडर भरना है, किसी को आपके वहां कॉन्ट्रैक्ट देना है, ऐसा व्यक्ति आपको मिलने के लिए आएगा और वो अपने स्वभाव के अनुरूप आपको खरीदने का प्रयास करेगा, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसा ही मानते हैं कि एवरीथिंग कैन बी, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है सब खरीद लो, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए वो सामने वाला व्यक्ति अब आपको उसकी हैसियत के साथ करना है, वो उसको कोई खरीद सकता है तो वो सोचेगा कि आपको भी कोई खरीद सकता है। और ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन क्यों करना? आपकी शर्त वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, कंडीशंस वेबसाइट पे पढ़ो, टेंडर भरो, एनरोल हो और नहीं। इसमें मैनेजमेंट क्यों आएगा और मैनेजमेंट क्यों आना चाहिए? मुलाकात होगी